So stanza 5th is, outspoke the hardy Highland right, I'll go, my chief, I'm ready. It is not for your silver bright, but for your winsome lady. Now, this says, outspoke the highly Highland wife, I'll go, my chief, I'm ready. It is not for your silver bright, but for your winsome lady. So इसका हम explanation ऐसे we'll read the explanation and then मैं ऐसे explain करती हूँ. तो जो boatman होता है वो बहुत strong and brave होता है and वो Highland को belong करता है. So हम लिखते हैं the boatman who is the strong and the brave one belonging to the high mountain region, said that he would go taking them across the river, but not for money. He would take for the beautiful lady. So, in this stanza, the boatman who is the strong and the brave one belonging to the high mountain region said that he would go taking them across the river, but not for the money, he would take for the beautiful lady. So, जो boatman होता है, जो बहुत strong और brave होता है, वो बोटमैन माउंटेन रीजन को बिलोंग करता है, हाई माउंटेन रीजन को बिलोंग करता है और वो कहता है कि वो उनको, क्योंकि जो चीफ्टन होता है वो बोटमैन को पहले ही बोलता है कि अगर आप हमें जल्दी ले जाएंगे हाईलैंड्स पे तो हम आपको एक सिल्वर पाउंड देंगे. पर यहाँ पे बोटमैन बोलता है कि वो उन लोगों को ले जाएगा वहाँ तक, पर पैसों के लिए नहीं, वो इसलिए ले जाएगा क्योंकि जो लॉर्ड यूलेंस की डॉटर है वो बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है, तो जो बोटमैन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ब्रेव होता है, बहुत ताकतवर होता है, निडर होता है और वो हाई माउंटेन्स रीजन का रहने वाला होता है और वो माउंटेन्स में रहने वाला होता है और वो कहता है कि वो उसको चीफ्टन को और लॉर्ड यूलेंस की डॉटर को ले जाएगा अपनी बोट पर पैसों के लिए नहीं, वो उनसे पैसे नहीं लेगा, वो उन्हें इसलिए ले जा रहा है क्योंकि जो लॉर्ड यूलेन की डॉटर है वो बहुत ब्यूटीफुल है. Clear? Now the sixth stanza is, and by my word the boomy bird in danger shall not tarry, so though the waves are raging white, I'll row you over the ferry. Now इसका explanation is, the boatman, जो इसमें boatman होता है वो कहता है that वो कसम खाता है. Okay, I'll write it. The boatman, stanza 6th का explanation. The boatman says that he swears not to keep the lady Lord Yulen's daughter in danger, anymore. Though waves are getting furious and foaming, he will मतलब जो बोटमैन होता है वो बोलता है he will take
them across the load scale. तो जो बोटमैन होता है, सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग, इस स्टैंजा का मीनिंग जो है वो है, द बोटमैन सेज दैट ही स्वेयर्स नॉट टू कीप द लेडी who is Lord Yulin's daughter in danger anymore. Though waves are getting furious and foaming, he will take them across the load scale. तो जो बोटमैन होता है वो ये बोलता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं लॉर्ड यूलिन की डॉटर को और डेंजर में नहीं रखूँगा, क्योंकि जब बोट होती है, पानी जो होता है वो बहुत तेज़ तूफान आ रहा होता है, उसमें वेव्स आ रही होती हैं, और वो उन्हें बोलता है कि वो उन दोनों को लोजगैल, ही विल टेक देम अक्रॉस द लोजगैल, तो वहाँ से उन्हें ले जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज स्टैंजा 7. By this the storm grew loud space, the water wraith was shrieking, and in the shawl of heaven earth each face grew dark as they were speaking. इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन मैं लिखती हूँ, एंड अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए किसी भी स्टैंजा का एक स्टैंजा आपको गिवन होएगा और आपको उसका एक्सप्लेन करना होगा, उसका मीनिंग बताना होगा. सो जो स्टैंजा 7 है इसका एक्सप्लेनेशन है, इन द मीन time the storm turned to be a rough and violent. It seemed as if the water ghost was shouting. The sky turned darkish, and the turbulence of the sky looked as if frowning look which brought darkish flush on the face of all three. So इस स्टैंजा में लिखा है, इस स्टैंजा का मीनिंग है, in the meantime the storm turned to be a rough and violent. It seemed as if the water ghost was showing. The sky turned darkish, and the turbulence of the sky looked as frowning look which brought darkest flush on the face of all the three. तो जब वो लोग जा रहे होते हैं तो पानी में इतना तूफान आ जाता है और हवा में इतनी आंधी आ जाती है कि कि सब कुछ रफ दिखने लगता है उन्हें, और ऐसा लगता है जैसे वाटर गोस्ट आ गया हो, और वो जैसे देखते हैं कि स्काई भी डार्क टर्न हो जाता है, वहाँ पर टर्बुलेंस बढ़ जाता है, तो तीनों के जो फेसेस होते हैं वो बहुत डार्क हो जाते हैं, तीनों बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज पानी बहुत रफ और वायलेंट हो जाता है, वहाँ पे बहुत आंधी आ जाती है. नाउ द स्टैंजा 8 इज, but still as wilder blew the wind, and as the night grew drearer, adown the glen rode armed men, their trampling sounder nearer. So इसका हम लिखेंगे, जो विंड होती है वो बहुत वाइल्ड होती जाती है, बहुत तेज़ बढ़ती जाती है, वो बहुत रफ होती जाती है, और रात भी बढ़ती जाती है और रात भी रफ होती जाती है. तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, द विंड वॉज ब्लोइंग एंड द विंड ब्लोज, ब्लोइंग rough and violent. It seemed as if the water ghost was showing. The sky turned darkish, and the turbulence of the sky looked as if frowning look which brought darkest flush on the face of all the three. So इस स्टैंजा में लिखा है, द विंड वॉज ब्लोइंग, एंड द विंड ब्लोज ब्लोइंग रफ
night started to grow darker and rough. Suddenly, from the glen, sounds of the armed soldiers were heard coming towards them. So stanza का explanation is, the wind was blowing rough and violent, night started to grow darker and rough. Suddenly from the glen sounds of the armed soldier were heard coming towards them. तो जो विंड थी, जो हवा थी, वो तो बहुत तेज़ बुरी तरह से बहुत तेज़ चल रही थी और रात भी बहुत अंधेरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। एकदम से आवाज़ आती है, जो उनके आर्म्ड सोल्जर्स हैं वो लॉर्ड यूलियन की डॉटर चीफ्टन एंड बोटमैन की तरफ आते, तो उनकी तरफ आवाज़ आती हुई सुनाई देती।